Hello everyone. Today we are going to start with microorganism, friend and foe. Chapter number 2, class 8, science and technology. Now when we start with microorganism, the first question come in our mind is what are microorganism? Microorganism क्या है? Actually microorganisms are also living organisms which are present in our surrounding but we cannot see them. ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सराउंडिंग में तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इफ़ यू हैव ए ब्रेड एट योर होम, जस्ट ग्रैब इट, मॉइस्ट इट। यदि आपके घर में ब्रेड है तो ले लीजिए, उसको गीला कीजिए एंड पुट और डंप इट इन ए कॉर्नर। ब्रेड को गीला करके कहीं कोने में रख दिया एंड ऑब्जर्व आफ्टर 2 to 3 days। इसके बाद हमने इसको 2-3 दिन बाद ऑब्जर्व किया, हमें क्या मिलेगा? उस ब्रेड पीस पर हमें कुछ स्पॉट्स मिलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है। वाइटिश, ग्रीनिश, ब्राउनिश स्पॉट्स होंगे। ये स्पॉट्स एक्चुअल में क्या हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, पूरा ब्रेड भरा हुआ है। ये स्पॉट्स क्या हैं? एक्चुअल में ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगस। अभी कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, अभी तो सर कह रहे थे कि ये वो हैं जो नॉर्मली दिखाई नहीं देते। यदि हम बात करें जब ये ग्रुप में है, जब थोड़ी छोटी चीज़ होती है दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो बल्क है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो ये ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज यदि मैं चाहूँ, मैं इसमें से एक फंगस देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख पाऊँगा। Okay, let me start one more activity, observing a drop of water. For this, we need a drop of water, especially prefer the drop of water from a pond if you have nearby. Otherwise, we can make our sample water. For this, need tap water. Fill the tap water in 3/4 of the beaker. एक बीकर में 3/4 हिस्सा पानी ले लीजिए और डिजोल्व सम soil, ठीक है। Maybe your garden soil, road soil, whatever the soil you get, dissolve in it. And then what we have to do, we have to take a drop of water from this sample water. Now if we make a slide, put the drop of water on a slide and observe under microscope, and what you can observe, you will observe number of organisms floating in that drop of water. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे उस पानी की ड्रॉप में फ्लोट करते हुए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अदरवाइज दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हमें क्या, वो किसकी मदद से दिखाई देंगे? माइक्रोस्कोप की मदद से। या कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी दिखाई दे जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो माइक्रोस्कोप चाहिए या मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। In this slide we are going to discuss something about types of microorganisms. So there are different types. First one is bacteria, second one is protozoa, third one is algae, fourth one is fungus. There are some example. Bacteria may be spiral bacteria, bacteria may be rod shaped bacteria. These are the categories of bacteria depending on their shapes. Some bacteria who have the rod shape, they look like the rod, so they are called rod shaped bacteria. These are the bacteria which have spring like shape, spring like shape, so they are called spiral bacteria. And these are the bacteria, specific name like lactobacillus is a bacteria which make the curd. This is the rhizobium, this is the bacteria
which help in the nitrogen fixation. These are the example of protozoa, amoeba and paramecium. Amoeba have irregular shape, paramecium have a shape like a slipper. Now this is a single cell algae, Chlamydomonas, like this, it look like this. And the Spirogyra, it is a filamentous algae, it look like a filament. The other fungus example are yeast and mold. Here you can see it is a mold like bread mold, what we have grown earlier in the previous activity. Penicillium is also a fungus, it look like this. And Aspergillus is also a type of fungus, a specific example of fungus. You must keep in mind that you have to memorize the diagrams of NCERT books. Sometimes it happens that in the question paper, the examiner will give the diagram and ask about the name, identify the given picture. Okay, there is another group which is actually not living and not living or not non-living. These are viruses. ये वो ग्रुप है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है. ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये तभी ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तभी होती है जब ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं. होस्ट क्या है? होस्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. या तो वो बहुत छोटा हो सकता है बैक्टीरिया की तरह, या वो प्लांट हो सकता है, या वो एनिमल हो सकता है, इवन वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. ये तभी एक्टिव होते हैं, ये तभी अपने नंबर को बढ़ा पाते हैं जब ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. जब ये बाहर होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते, तब ये किसकी तरह ट्रीट करते हैं? नॉन लिविंग की तरह. ठीक है. तो in some books you can find virus as a fifth category of microorganism, but if you follow the NCERT based textbook, then you will find viruses as a separate part. Common cold, HIV and even corona is a virus. Here we also have something about the virus. Viruses are microscopic, but they are different from other organisms. They reproduce only inside the living cell. और इस लिविंग सेल को क्या कहते हैं हम? होस्ट. ओके. देयर इज द एग्जांपल ऑफ वायरस. बैक्टीरियोफेज इज एन वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. इसका जो होस्ट है वो एक बैक्टीरिया है, इसकी हेक्सागोनल शेप है. उसके बाद एडिनो वायरस. एडिनो वायरस जो हमारे कॉमन कोल्ड कफ के वायरस हैं, वो ये एडिनो वायरस कैटेगरीज के हैं. ठीक है. जो हमारा कोरोना वायरस है वो भी एक एडिनो वायरस कैटेगरी टाइप ऑफ वायरसेस में आता है. HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ये वायरस क्या है? ये वायरस वो है जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल एंड पिक्चर्स ऑफ वायरसेस. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ हैं? वेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. तो ये हर एक तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं. आइस कोल्ड, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो, या हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट रेगिस्तान हो, या आपकी दलदल हो, मार्शी लैंड्स हो. इनसाइड द एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के अंदर. सम ग्रोन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों की सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे. सम एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ बिल्कुल फ्री रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हार्मफुल हैं और डिजीज करते हैं. आज हम पहले इस स्लाइड से डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका पर्पस अच्छा है, हमें फ़ायदा करते हैं. जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? हमें हेल्प कर रहे हैं. किस किस में हेल्प कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक. Okay, cleaning of environment, improve soil fertility, production of alcohol, source of medicines and vaccines. हम एक एक करके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे. उसमें फर्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. इफ यू हैव लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस क्या है? ये एक बैक्टीरिया है
जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में मदद करता है, बैक्टीरिया जो कि कर्ड में है जिसके कारण दही बनता है। यदि आपने घर में मम्मी को दही जमाते हुए देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मम्मी दूध लेती हैं और उस दूध में थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देती हैं, कर्ड। अब ये जो थोड़ी सी मात्रा में कर्ड डाला तो मम्मी ने क्या डाला यहाँ पर, लैक्टोबैसिलस। उसमें क्या था कर्ड में, जो थोड़ी मात्रा में डाला क्या था, कर्ड में क्या था, लैक्टोबैसिलस। इस लैक्टोबैसिलस ने क्या किया, इस मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इस मिल्क को कर्ड में बदल दिया। और साइंटिफिकली एक काम जो किया इसने, इसमें मिल्क में एक शुगर है जिसका नाम क्या है, लैक्टोज। क्या नाम है, लैक्टोज। इस लैक्टोज को इसने किस में बदल दिया, लैक्टिक एसिड। किस में बदल दिया, लैक्टिक एसिड। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। तो किस तरह से ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और उसको किस में बदल देता है, कर्ड में। कर्ड इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इडलीज। इस कर्ड का उपयोग आप करते हैं इडली बनाने में, डोसा बनाने में, भटूरा बनाने में। ठीक है, कई जगह ये काम फर्मेंटेशन का यानी इडली डोसा बनाने का काम किसमें किसके द्वारा भी किया जाता है, ईस्ट के द्वारा। ठीक है, राइस, इडली, डोसा, ब्रेड, ये यूज किया जाता है ईस्ट। हम मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड कंटिन्यू है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड स्पेशली और आपका फॉर्मेशन ऑफ इडली डोसा इनके बारे में पता चलेगा। तो टेक अ हाफ केजी ऑफ मैदा, आधा किलो मैदा ले लीजिए। ठीक है, यदि अवेलेबल है, नहीं तो आटा ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी शुगर, ऐड सम शुगर, मिक्स विद वाटर। शुगर ले लीजिए, पानी मिलाइए। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिलाइए। ईस्ट नहीं है तो ईस्ट की जगह क्या मिला सकते हैं, कर्ड। ओके, और नीड इट, गूंथ लीजिए इसको अच्छे से। और ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे रख दीजिए। द डफ विल राइज, जो आपका आटा है वो बढ़ जाएगा, वो ग्रो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ईस्ट था या जो बैक्टीरिया, यदि आपने दही डाला तो वहां पे क्या था, लैक्टोबैसिलस, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट और बैक्टीरिया ने रेस्पिरेशन किया और क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स थे जो उस डफ में भर गए और उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, उस डफ का वॉल्यूम बढ़ा दिया। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ समथिंग इन लार्ज स्केल एंड कॉमर्शियलाइज इट। किसी चीज का ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना और उसको मार्केट में सेल करना, उसको बेचना। तो यहाँ पर ईस्ट का उपयोग किया जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस ईस्ट इज ग्रोन विद नेचुरल शुगर सच एज ग्रेन एंड फ्रूट जूस। एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और क्या किस पे किया जाता है, ग्रेन्स और जूसेस की शुगर पर। कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। आपको क्या करना है, टेक वाटर इन ए बीकर, आप पानी ले लीजिए बीकर में और डिजोल्व शुगर इन इट। इसमें शुगर को डिजोल्व कीजिए और इसमें हाफ ए स्पून ईस्ट पाउडर डाल दीजिए। इसको वार्म प्लेस पर रख दीजिए और 4 से 5 घंटे तक, 4 to 5 आवर्स तक रहना दीजिए। उसके बाद इसको क्या करना है, स्मेल करना है, इसको सूंघना है। वट यू विल गेट एन एल्कोहलिक स्मेल। आपने लिया तो शुगर था, लेकिन एल्कोहलिक स्मेल कहाँ से आई, एक्चुअल में ये जो शुगर लिया था ये किस में बदल गया, एल्कोहल में। किसने बदला, ईस्ट ने। इस ईस्ट ने क्या किया, जो भी शुगर था, चाहे वो ग्रेन्स में था चाहे वो फ्रूट जूस में था, ये उस शुगर को अल्कोहल में बदल सकता है। शुगर का अल्कोहल में बदलना, शुगर का अल्कोहल में बदलना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। यहाँ पर हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं, ईस्ट। शुगर का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। इट गिव्स द अल्कोहलिक स्मेल बिकॉज द शुगर इज in it converted into alcohol by the yeast. This process is called fermentation. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंट। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन में यूज।
यहाँ पर हम दो यूजेस पढ़ेंगे। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, और एक हम पढ़ेंगे वैक्सीन। तो पहले केस में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन, ये दवाइयाँ हैं, विच आर फॉर्म बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनी है। और इसका यूज क्या किया जाता है? दीज आर यूज टू किल द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है और दूसरी बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। एग्जाम्पल है पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। Penicillin is the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1929. But there should be some precautions about taking antibiotics. जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होना चाहिए। सबसे पहला ध्यान क्या है? सबसे पहले ये कब खानी है? ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। इट शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई लिखी, हो सकता है हम एक डोज से ठीक हो गए, तो जनरली हम वो दवाई नहीं लेते। उससे क्या होता है कि उसमें जो एंटीबायोटिक्स थी उसने हमें कंप्लीट रिकवर नहीं हो पाए और हम फिर से दोबारा बीमार पड़ सकते हैं। तो एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, वो हमें क्या करना चाहिए? कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड। और उस समय एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए जब जरूरत ना हो। The second use of medicinal use of microorganism is vaccine. Before doing vaccine, I just want to give an introduction for our body defense system. Body defense system क्या है? करता है जब हमारे पास पैथोजन क्या है? पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉज पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या माइक्रोब्स। ओके, तो ये जब पैथोजन है ये हम पर जब अटैक करते हैं, कहाँ से अटैक करते हैं? हमारी सराउंडिंग से। तब हमारी बॉडी इनको किल करने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाती है और ये प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडीज। अब जब ये प्रोटीन बनाती है तब इसको सबसे पहले हमारी बॉडी की सेल्स को सबसे पहले क्या है? पैथोजन को पहचानना होता है और ये उसी पैथोजन के लिए स्पेशल प्रोटीन यानी स्पेशल एंटीबॉडीज बनाती है। ओके, और ये एंटीबॉडीज इनसे लड़ते हैं और इनको हरा देते हैं और हमें बीमार नहीं होने देते, हमारा डिफेंस करते हैं। लेकिन यदि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज करने वाले हैं नहीं हारे तो हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी, हम बीमार होंगे। तो अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि जब ये पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, इन्होंने बॉडी पर आक्रमण किया, तब हमारे शरीर को टाइम लगता है कि ये एंटीबॉडीज बनाए। ओके, तब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और अपना इफेक्ट दिखा देते हैं, ठीक है। और इनका इफेक्ट क्या है कि हम क्या पड़ जाते हैं? बीमार, हम हो जाते हैं सिक। तो अब वैक्सीन क्या काम करती है? वैक्सीन ऐसा काम करती है कि वो हमारी एंटीबॉडीज को पहले से बनाकर तैयार रखती है। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये एंटीबॉडीज इन पर अटैक कर देते हैं और इन एंटीबॉडीज को किल कर देते हैं और तब हम नो सिक बीमार नहीं पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारे शरीर में किसकी मदद से बनाए जाएंगे? वैक्सीन। और ये वैक्सीन क्या है? ये एक्चुअल में खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कमजोर कर दिए गए हैं। देखिए जरा देखते क्या लिखा है। व्हेन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज।
which fight with the pathogen. The antibodies once formed will remain in the body and fight again when the same pathogen attack on the body. Let us start back again. Vaccines are weak or dead microorganism. वैक्सीन एक्चुअल में क्या है? या तो वीक या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? जो हमें बीमारी करेंगे, पैथोजेंस हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कमजोर करके या उनको मार कर, ठीक है। और ये हमारी बॉडी इनके सोचती है कि हमारा जो एनिमी आ गया है, तब वो उसको पहचानती है और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन वो टाइम जो अब लगा, इस समय क्या है, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डाला वो क्या है, वीक है या वो डेड है, तो वो हमें सिक नहीं करेगा। लेकिन उसके कारण हमारी बॉडीज में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंटीबॉडीज, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज स्टार्ट फाइटिंग एज सुन एज द पैथोजन एंटर इन द बॉडी। जब वास्तविक रियल लाइफ में पैथोजन एंटर करेगा, तब हमारी बॉडी आते ही इन पर अटैक कर देगी और हमें बीमार होने से बचा देगी। ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स इसके, जैसे पोलियो ड्रॉप आप पीते हैं, वो क्या है, वो एक वैक्सीन है। पोलियो नहीं है फिर भी पिलाई जा रही है ताकि हमारी बॉडी में उसकी एंटीबायोटिक बन जाए। टेटनस का इंजेक्शन, कुछ भी लगते, टेटनस का इंजेक्शन लगाया, मुझे टेटनस नहीं हुआ लेकिन टेटनस का इंजेक्शन लगाया। टेटनस क्या है, एक वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स अभी बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन इरिडिकेट हो गई है लगभग। तो ये स्मॉल पॉक्स नहीं है फिर भी उसकी बच्चे को वैक्सीन लगती है क्योंकि इसकी एंटीबॉडीज बन जाए। और स्मॉल पॉक्स क्या है, फर्स्ट वैक्सीन है जो कि एडवर्ड जेनर ने 1798 में। The other benefit of microorganism is to increasing the soil fertility. Some microorganism can fix the atmospheric nitrogen into the soluble form of nitrogen through the process of nitrogen fixation and increase the soil fertility. Example, Rhizobium, blue-green algae. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या है, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड वो हैं जिनको पौधे अपनी जड़ों से पानी के साथ अवशोषित करते हैं, अपनी पानी के साथ अब्जॉर्ब करते हैं, और ये नाइट्रोजन के द्वारा ही पौधे में क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो राइजोबियम है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसने जो एयर की नाइट्रोजन थी उसको कहाँ डाला, सोयल में। अब वो सोयल में क्या आ गई, फर्टिलिटी बढ़ गई क्योंकि उसमें अब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं और इसी नाइट्रोजन के कंपाउंड को प्लांट्स ने लिया और प्लांट्स में प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स को एनिमल्स ने खाया। बट हेयर वी आर फोकस्ड ऑन कि सोयल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करके सोयल फर्टिलिटी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा रही है। The next benefit of microorganism to clean the environment or the cleaning of environment. Let's try to understand this thing with the help of an activity. Take two pots, label A and B. In one pot, add some soil. Half of the pot will be with soil, and put some plant waste and then cover with soil. Now, in the B, take some soil, put some plastic, glass, etc. and then cover with the soil. दो गमले लिए हैं, ए और बी नाम रखा है। एक ए गमले में हमने सोयल और प्लांट वेस्ट लिया है, दूसरे में सोयल, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े ये सब लिया है। 3-4 हफ्ते बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व दिस आफ्टर 3 and 4 weeks। ओके, व्हाट वी कैन सी, जो हमारा पोर्ट ए था जिसमें प्लांट वेस्ट था उसमें प्लांट वेस्ट खत्म हो गया और वो क्या बन गई, मैन्योर। ओके, जो बी था उसमें क्या था, सोयल थी, प्लास्टिक था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमने देखा प्लांट वेस्ट क्या बन गया, मैन्योर। इसका ये काम किसने किया, इसको बदलने का काम किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसी तरह जो हमारे एनवायरनमेंट में
या मिट्टी पे या जहाँ भी है, हम कई बार क्या करते हैं, चलते फिरते अपना केले का छिलका भी मिट्टी में गिरा देते हैं, तो थोड़े दिन बाद वो मिट्टी में पड़ा पड़ा काला हो जाता है और उसके बाद थोड़े समय बाद वो गायब भी हो जाएगा। उसको गायब करने का काम किसने किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जंगलों में प्लांट वेस्ट से पत्तियां, लीटर, बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो कि धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है और आ जाता है। तो वो खत्म करने का काम, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, okay, of plant and animal, converting them into simple substances. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट या एनिमल का वेस्ट हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इनका क्या हो? वेस्ट हो, ठीक है। ये उसको क्या करते हैं? वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको किस में बदल देते हैं? वो सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, किसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं? दोबारा से प्लांट्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। उन प्लांट्स फिर एनिमल्स के पास चले जाते हैं। These substances are used by another plant and animals. Hence, microorganisms degrade the harmful and smelly substance and thereby cleaning the environment, cleaning up the environment. Before saying thanks or ending the session, I will try to sum up the things what we have discussed in the previous slides. First, we discussed what are microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। दूसरा हमने किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमें बेनिफिट करते हैं, तो उसमें हमने किया था मेकिंग या प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया था फर्मेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ वाइन एंड अल्कोहल, उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एंटीबायोटिक्स एंड द रेस्ट वैक्सीन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, the last we discussed cleaning of environment. So that's all about the first part of microorganism friend and foe, and soon I'm going to give a video about the next part in which we shall discuss about harmful microorganisms. Thank you.